آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ کشمیر میں شیعہ مسلمانوں کے ایک جید عالم دین مذہبی لیڈر آغا سید محمد باقر الموسوی کا انتقال ہو گیا کل رات گئے۔ اس کو لے کر کے بہت سارے جو مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے زعما، ان لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے آغا سید محمد باقر کو۔ سیاسی لیڈر کشمیر کے اور کشمیر سے باہر کے لوگ بھی، اور جو لوگ سیاست سے بھی وابستہ نہیں، انہوں نے بھی اپنی تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق آغا صاحب کا جو جسد خاکی ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوئی ہے بڈگام میں، جو ان کا آبائی مقبرہ ہے بڈگام کے قریب پہ، وہاں پہ ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایک اطلاع کے مطابق 50,000 سے زیادہ لوگ، لیکن ابھی تک ہمارے پاس اعداد و شمار آفیشل نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے۔ جو لوگ وہاں پہ تھے جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، ان میں جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب اور ان کے کابینہ کے ساتھی جاوید احمد ڈار، ان کے مشیر ناصر اسلمانی، اور نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے فرام خان صاحب، سیف الدین بٹ، ایم ایل اے فرام چاڈورہ علی محمد ڈار۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، مذہبی تنظیموں سے تعلق ہے، انہوں نے وہاں پہ نمائندگی کی، اور وہاں پہ 4 دن کے لیے ماتم منایا جا رہا ہے۔ بڈگام کے نواح میں، بڈگام قصبے میں اور نواح میں آج ساری دکانیں وہاں پہ بند رہیں، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں پہ 4 دن تک وہاں پہ ماتم رہے گا۔ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اتنی جانکاری نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہ کس وجہ سے ہے اور کیوں یہ خبر اتنی اہم بنتی جا رہی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ آغا سید محمد باقر بڈگام کے جو آغا خانوادہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم اس کے پس منظر میں بھی جائیں گے، لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ شروع میں تقریباً 1950s 1960s میں یہ گئے تھے عراق، اور وہاں پہ جو مشہور ایک علمی شہر ہے نجف جو عراق میں ہے، وہاں پہ انہوں نے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کر لی تھی، اور جب وہاں سے واپس آئے تو یہاں پہ یہ ایک بہت ہی اہم مذہبی رہنما کے طور پہ ابھرے۔ لیکن ایک چیز ان کو امتیاز بخشتی ہے، ممیز کر دیتی ہے باقی سارے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مذہبی یا سیاسی تنظیم نہیں بنائی۔ جتنی بھی دیر یہ رہے، یہ تبلیغ کے ساتھ رہے، انہوں نے اخلاق کا درس دیا، انہوں نے مذہب کا درس دیا، لیکن انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں کیا، انہوں نے الیکشنز نہیں لڑے۔ حالانکہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے کشمیر کے شیعہ مسلمانوں کی جو ایک بہت ہی بڑی تنظیم ہے انجمن شرعی شیعان، اس کی داغ بیل وہیں پہ ڈالی گئی، جو آغا سید یوسف الموسوی تھے، جو اس کے بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر تھے، جن کا 1982 میں انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بعد جو ان کے وہاں پہ 2 جانشین پیدا ہو گئے، جن میں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی تھا، 2 فیکشنز ہو گئے۔ آغا سید مصطفیٰ صاحب جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے یہ قریبی رشتہ دار تھے۔ اس کے علاوہ آغا سید محمد فضل اللہ جو ان کے فرزند تھے، تو ان دونوں نے وہاں پہ انجمن شرعی شیعان کے 2 فیکشنز وہاں سے چلائے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ براہ راست وابستگی نہیں دکھائی، حالانکہ آغا سید یوسف الموسوی، جن کو آغا صاحب بڈگام کہتے تھے، وہ شیخ محمد عبداللہ کے بہت ہی مداح تھے، ان کے قریبی تھے، لیکن نیشنل کانفرنس کو انہوں نے اعلانیہ طور پر کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ ان کے بعد ان کے جو فرزند ہے آغا سید محمود، انہوں نے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے پٹن سے 1987 میں، پھر وہ منتخبی ہو گئے اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی بن گئے۔ پھر 96 میں انہوں نے بیروا سے انتخاب لڑا اور وہاں پہ پھر منتخب ہو گئے، اور دوبارہ ان کو منسٹر آف اسٹیٹ بنایا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی کابینہ میں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کے جو بھائی ہیں آغا سید محمد فضل اللہ، جو اصل میں آغا سید یوسف کے
वहाँ पे जानशीन थे, तो इन्होंने कोई किसी सियासी तंजीम में शिरकत नहीं की। हालांकि वो आगा सईद महमूद के बड़े भाई थे। अब आगा सईद मोहम्मद फजला का भी इंतकाल हो गया जनवरी 2018 में, और उस वक्त भी एक जमे गफीर ने, बहुत बड़े इज्तिमा ने वहाँ पे उनके नमाज जनाजा में बडगाम में पार्टिसिपेट किया था। तो इसके अलावा जो उनकी दूसरी शाख है आगा सईद मुस्तफ़ा, तो इनके जो फर्जंद है आगा सईद हसन अल मौसवी, जो इस वक्त अंजुमन शरीशियान के दूसरे फैक्शन की क़यादत कर रहे हैं, इन्होंने मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये हालांकि बुनियादी तौर पर एक मजहबी रहनुमा है, लेकिन उन्हें 1977 का इलेक्शन लड़ा बडगाम हल्के इंतखाब से जनता पार्टी के टिकट पर, जो उन्होंने हारा, लेकिन उन्होंने लड़ा। इसके बाद जो उनके दूसरे भाई थे आगा सईद महदी, जो एक टेररिस्ट हमले में मारे गए सन 2000 में, तो इन्होंने भी कई इलेक्शन लड़े आज़ाद उम्मीदवार की तरफ हैसियत से। 1987 में जो जिस वक्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के भी वहाँ पे उनका भी काफ़ी असर था उनके, लेकिन दूसरे कैंडिडेट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उस वक्त कामयाब हो गए थे बडगाम से। लेकिन ये बताना है कि इनके खानदान के कई लोग सियासत में आ गए, अमली सियासत में आ गए। और इसके बाद आगा सईद महदी ने 1998 का इलेक्शन भी लड़ा कांग्रेस के टिकट पे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, सेंट्रल कश्मीर से श्रीनगर बडगाम के हल्के इंतखाबात से वो वहाँ पे हारे, उमर अब्दुल्ला वहाँ पे जीते। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद आगा सईद रूहुल्लाह महदी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। 2002 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता। फिर 2008 का और 2014 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और जीता। और 2009 से 2014 तक ये काबीना में, उमर अब्दुल्ला की काबीना में मिनिस्टर भी रहे। और अभी 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में आगा सईद रूहुल्लाह कामयाब हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर सेंट्रल कश्मीर से, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, शोपियान के अजला आते हैं अब नई डिलिमिटेशन के बाद। मैं ये बता रहा था कि इस खानदान के कई लोग हैं जो मजहब के अलावा सियासत से भी अमली तौर वाबस्ता रहे, लेकिन आगा सईद मोहम्मद बाकर किसी भी मजहबी और सियासी तंजीम के साथ नहीं रहे। और ये जायद आलमी दीन थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई किताबों के का तर्जमा उन्होंने किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जो थी वो थी अल गदीर। ये बुनियादी तौर पर 11 वॉल्यूम्स का एक सिलसिला था, जो शेख अब्दुल हुसैन अमीनी, जो बुनियादी तौर पर एक ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलिम, जिनकी तालीम तरबियत नजफ़ शहर में हुई। वहीं पे आगा सईद मोहम्मद बाकर अल मौसवी वहीं पे ये भी तालिब इल्म थे। तो अमीनी साहब ने वहाँ पे एक अमीर अल मोमिनीन के नाम से एक बहुत ही बड़ा कुतुब खाना, एक लाइब्रेरी वहाँ पे बनाई थी, जिसमें ये लोग इकट्ठे होते थे। तो जब बाद में आगा सईद बाकर अल मौसवी वापस आ गए बडगाम, जो उनका एक स्पिरिचुअल सीट है, वहीं पे ये वहाँ से बराजमान रहे। और वहाँ पे उन्होंने इनके इस अल गदीर जो एक किताब वॉल्यूम्स हैं, इनके मेरे ख्याल से कम 3 वॉल्यूम्स का उन्होंने उर्दू में तर्जमा कर लिया और वो काफ़ी मशहूर हो गई वो किताब। इसके अलावा भी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ये जाते थे, वाज फरमाते थे, कई जगहों पे इखलाकियात का दर्स देते थे। और लेकिन ये बिल्कुल ही किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाते थे जहाँ पे इनको सियासत से जोड़ा जा सकता था। ये ख़ासतौर से मुहर्रम के अयाम में जो मजहबी तकरीबात होती हैं, जो मजालिस होते हैं, इनमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। ये दूसरे जो आगा साहिबान हैं या मौलवी साहिबान हैं, जो जिनके पास एक शरीयत कोड भी हुआ करते थे, लेकिन आगा सईद बाकर साहब ने ये शरीयत कोड भी नहीं लगाए। लेकिन इनका एक ख़ास डिस्टिंक्शन यह भी था कि जो इनके फॉलोअर्स थे, और फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद थी यहाँ पे पूरे कश्मीर में, ज़्यादातर लोग वो थे जो तालीम याफ्ता थे, हाईली एजुकेटेड पीपल। वो अक्सर उनके पास जाते थे और उनसे वहाँ से मुस्तफ़ीद होते थे उनके इल्म से। तो इनका राबिता ज़्यादातर इन लोगों के साथ होता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, उनके साथ उनका राबिता नहीं था। उनके साथ भी एक राबिता रहता था, लेकिन आमतौर पर ये रेक्लूस, जिसको हम कहते हैं कि लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ये ज़्यादातर अपने घर पे रहते थे। और ये वहाँ पे
पढ़ते थे किताबें, इनका जो मुताला था वो काफ़ी वसी था, रिसर्च करते थे और किताबें लिखते थे। और इनका इम्तियाज़ यह भी है कि जो आगा ख़ानदान से जो जिस शख्स ने सबसे पहले अंग्रेज़ी तालीम बाज़ाब्ता तौर पे हासिल कर ली वो इनके ही फर्जंद है आगा सईद अहमद, जिन्होंने अरबी में MA की डिग्री हासिल की एक ज़माने में। उसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़ा और इसमें वो काफ़ी मशहूर हैं इस चीज़ के लिए। बाद में कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की जिन इस ख़ानदान से, लेकिन शुरुआत उन्होंने की जो आगा सईद मोहम्मद बाकर के फर्जंद थे। अब इनके जो दो फर्जंद हैं इनमें दूसरे इनके जो बेटे हैं तो वो इनके जानशीन वहाँ पे शायद मुकर्रर हो सकते हैं और वो क़यादत कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स की। तो ये बताना भी ज़रूरी है जब हम शिया मुसलमानों की बात करते हैं तो इनके दो ख़ास सीट्स हैं। एक ये था जो अंजुमन शरीशियान जो बड़गाम मैंने जिक्र किया, इसके आगा साहब बड़गाम हुआ करते थे और बाद में इसके फैक्शंस अलग अलग हो गए। इसके अलावा इनकी जो दूसरी शाख है मजहबी क़यादत की वो है शिया एसोसिएशन, ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन, जिनके हकीम जवाद साहब ने इसकी दाग बेल डाली थी। और उसके बाद मौलवी इफ्तिखार अंसारी जो उनके फर्जंद थे उन्होंने इसकी क़यादत की, मजहबी क़यादत। और उसके बाद उन्हें वो सियासत में भी आगे शुरू में वो DP दर के बहुत करीबी थे उस वक़्त, तो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। और उसके बाद उन्हें कई इलेक्शंस लड़े, कई इलेक्शंस उन्हें हारे, कई इलेक्शंस जीते और कई बार वो मुंतखब हो गए और काबीना दर्जे के वज़ीर भी बन गए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी साथी थे लेकिन बाद में इनसे अलग हो गए। फिर 2009 जो लोकसभा का इलेक्शन था श्रीनगर से, वो उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ा, हालांकि हारे लेकिन उनके खिलाफ लड़ा और बाद में इनके बीच में दूरियां हो गई। तो ये भी एक दूसरी शाख है शिया मुसलमानों की रूहानी क़यादत की। और जो आगा साहब बड़गाम है इनके जो इनका मैंने जिक्र किया, लेकिन जो मौलवी साहिबान हैं इनको असल में जो कश्मीर के शिया लोग हैं इनको वो कदीम कहते हैं, और जो बड़गाम के जो आगाज़ हैं इनको वो जदीद कहते हैं अपने लोकल पार्लेंस में। और ये जो कदीम है इनमें से ही निकले थे मौलवी अब्बास अंसारी, जो एक ज़बरदस्त किस्म के मुकर्रर थे और वो भी एक बहुत बड़े आलिम थे कश्मीर में। और उनके भाई भी बहुत बड़े आलिम थे कश्मीर में। उनके भाई ने भी इलेक्शन लड़ा था 1987 का, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कैंडिडेट थे वो पटन से, जिन्होंने आगा सईद महमूद के मुकाबले में हारा था मुस्तफ़ा हुसैन अंसारी साहब। तो मौलवी अब्बास अंसारी ने खुद कोई इलेक्शन नहीं लड़े, हालांकि ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ काफ़ी वाबस्ता थे। और उसके अलावा इसके बाद जो 90 के बाद जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट कश्मीर में हो गई जिसमें आगा सईद हसन भी शामिल हो गए और आगा ये जो मौलवी अब्बास अंसारी साहब हैं ये भी सियासी इसके सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के साथ आखिरी दम तक ये उसके साथ वाबस्ता रहे। अभी हालिया बरसों में ही इनका इंतकाल हो गया मौलवी अब्बास अंसारी का। तो जो आगा सईद मोहम्मद बाकर अल मौसवी है इनके साथ ही एक दौर का इख्तिताम हो जाता है। जो इस पाए के लोग थे बहुत ही सीनियर लोग, जिनमें आगा साहब बड़गाम थे, मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी थे, मौलवी अब्बास अंसारी थे, और इसके अलावा अभी जो आगा सईद मोहम्मद बाकर थे इनके इंतकाल के साथ ही एक बड़े दौर का ये इख्तिताम हो गया है। और इसकी अब जो क़यादत है वो एक नई जनरेशन के हाथ में है। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं अहमद अली फयाज।